See in the picture, yes, Zoya is wearing a pink dress, so I will write yes. Zoya is wearing a pink dress. Is she is sad? Look at her face. She looks like sad. No, she is very happy about her birthday. So I will write no. She is not sad. Sad. She is wearing a party cap. No, there is no party cap on her head. So I will write no. There are 5 candles on the cake. So no, there is number 6 candle on the 6. So I will write no here also. So here we got 2 yes and 3 no's. It is Zoya's birthday. Yes, उसका birthday है आज. She is wearing a pink dress. Yes, she is wearing a pink dress. She is sad. No, she was not sad. She is wearing a party cap. No, there was no party cap on her head. There are 5 candles on the cake. No, there are 6 candles on the cake. So this is the question number 2 we have done from the page number 58. Now I will start our amazing story from the chapter 6, which is Amazing Ants. Okay, so it's from the standard 1 section. If you ask me, ma'am, what's your favorite story from the once literature book, I will say the chapter 6, Amazing Ants. From the last years till now, I loved this story. I don't know why, but I love the chapter 6, Amazing Ants. पूरे बुक में सबसे अच्छी स्टोरी जो मुझे अब तक लगी है वो अमेजिंग एंड्स लगी है. काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लिखा गया है इसे बच्चों के लिए. सो इट्स माय फेवरेट स्टोरी. यू कैन टेल मी इन द क्लास वेन एवर इट स्टार्ट्स ऑफलाइन, मैम व्हाट्स योर फेवरेट फ्रॉम योर बुक. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट द चैप्टर 6, अमेजिंग एंड्स. First of all, let me clean the board. Okay. Now I will write here chapter 6, Amazing Ants. Amazing Ants. Amazing means अद्भुत, incredible मतलब कुछ ऐसा जो कि आपके थाउट से, आपके इमेजिनेशन से भी बाहर हो, वैसा कुछ. अगर हम देखते हैं, सुनते तो हम बोलते हैं या आई वॉज अमेज्ड बाई हर. सम इफ वी जस्ट इमेजिन whenever we go to the park or whenever we go to the market, if we saw something which we have never seen in our life, we always say, what was that thing? It was very amazing. Or whenever we try something new food and that was a wholly good, I mean very very good, we say वाह आई वॉज अमेज्ड बाय द टेस्ट. मतलब कि वो ऐसा था कि खाने के बाद एकदम अद्भुत फील हो रहा था, बहुत बढ़िया. तो हम अमेजिंग वर्ड्स वहाँ पे वही हो रहा है, अमेजिंग एंड्स, अद्भुत चींटियाँ. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट दिस स्टोरी फॉर यू. Here we have total 4 ants: Toot, Foot, Cheat and Pete. Okay, these are the names of 4 ants and they are the main character of this story. First character is Toot, Foot, Cheat and the Pete. Okay, Toot, Foot, Cheat, Pete. ये नाम थे उन चींटियों के. वेरी इंटरेस्टिंग नेम, क्यूट नेम्स. ओके, सो टूट, फुट, चीट, पीट वर टाइनी एंड्स. ये 4 जो थे काफ़ी छोटी छोटी चींटियाँ थी. ओके, दे वर वॉकिंग इन अ लाइन. As we guys already know that the insects, especially the ants, they always walk in a line. वो हमेशा एक लाइन में चलती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती हैं. ओके, Maria was watching them. Maria is a girl in this story who was watching them sneakily. Okay, वो छिप कर उनको देख रही थी जब वो एक लाइन से जा रहे थे. And she also had a thought that what if I stop them. मतलब वो मन में सोचती है व्हाट इफ़ आई स्टॉप देम. वो इतने अच्छे से लाइन में जा रहे हो
ये सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी आदत होती है। जब चींटियाँ एक लाइन से अच्छे से अपने रास्ते जा रही होती तो हमारी आदत होती है उनके लाइन को बिगाड़ने की। उंगली रख के कुछ भी करके हम देखते हैं कि अगर हम बीच में पत्थर रख देते तो क्या वो उसके ऊपर से चढ़ के जाएगी, बीच में उंगली रख देते तो क्या हमें काट के हटाते हुए जाएगी। वी ऑलवेज आर वेरी क्यूरियस अबाउट देम। सो लाइक मरिया, we are also very curious. तो मरिया was also a child and she was very curious, what if I stop them, क्या होगा अगर मैं इन्हें रोक दूँ। तो मरिया thought, she put her hand before the first ant. तो एक लाइन से ये चारों चल रहे थे and मरिया what she do, she just put her first hand in front of the tooth. ओके, बस उसके माइंड में आया क्या होगा अगर मैं इन्हें रोक दूँ। बस वैसे ही वो अपना हाथ हैंड क्या करती है, एक सबसे आगे वाली चींटी के आगे रख देती है। शी पुट हर हैंड बिफोर द फर्स्ट एंट। पिट येल्ड, मरिया लेट अस गो। पिट चिल्लाता है, मरिया लेट अस गो, हमें जाने दो। वाओ, यू कैन टॉक टू मी, मरिया सेड। शी वॉज ऑल्सो वेरी नाउ अमेज्ड। वाओ, व्हाट द हेल, द एंड वॉज टॉकिंग टू मी, आई एम हियरिंग रॉन्ग, ऐसा कुछ। क्योंकि वी गाइज कैंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, एनीथिंग। वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन्स ओनली। ओके, तो शी वॉज वेरी अमेज्ड। जैसे ही उसने हाथ रखा, पिट येल्ड, पिट विज वन ऑफ देम, पिट उसमें से एक था, उस चींटियों में से, वो चिल्लाता है, मरिया प्लीज स्टॉप, लेट अस गो, तुम ये सब रोको, हमें जाने दो। ओके, तो वो खुश हो जाती, बोलती है वाह यू कैन टॉक, तुम बात कर सकते हो, तो मुझसे बात करो। मरिया बोलती है वी कैंट स्टॉप, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। ओके, तो पिट बोलता है वी कैंट स्टॉप, वी मतलब कि हम लोग नहीं रुक सकते, हमारे पास बहुत सारा काम है करने को। कौन कहता है ये बात कि हमारे पास बहुत सारा काम है करने को? फुट बोलता है ये बात। ओके, वर्क, मरिया स्माइल, यू आर हैविंग फन रनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द sorry, my tongue twisting, my mistake. You are having fun running from one end of the table to other. मरिया बोलती है काम, अच्छा तुम लोग, हंसते हुए, तुम लोग कौन सा काम करते हो, तुम लोग तो बस एक टेबल के कोने से दूसरे टेबल के कोने तक जा रहे हो। मरिया यानी बहुत उन्हें नोटिस करती होगी, देखती होगी आते जाते, इसलिए आज उन्होंने सोचा था कि आज मैं छेड़ूंगी इन लोगों को, मेरे टेबल पर से आना जाना करते, दैट्स वाई। तो मरिया हंसते हुए बोलती काम, कैसा काम, तुम तो एक टेबल के कोने से दूसरे टेबल के कोने तक बस जा रहे हो। हाय आई एम टूट द कुक एंड। ये सुनने के बाद टूट आगे आता है, आवर हीरो, और बोलता है हाय आई एम टूट द कुक एंड। वो कौन है? टूट का क्या काम है? वो एक कुक एंड है, मतलब कि शेफ है। क्या है? इन अ शॉर्ट, शेफ है। वो बोलता है हाय आई एम टूट, वो मरिया से बात करता बोलता है मैं एक कुक एंट हूँ, मैं खाना पकाता हूँ, मैं शेफ हूँ। देयर आर 1000 ऑफ कुक एंट्स। वो और साथ में ये भी बताता है कि हमारे एंट कॉलोनी में वी हैव सो मैनी शेफ्स, मतलब कुकिंग एंट्स। हमारे कॉलोनी में मेरे जैसे बहुत सारे कुक एंट्स हैं जो कि जिनका काम क्या है, बाकी कॉलोनी की बाकी चींटियों के लिए खाना बनाना। ओके, सो वी गेट फूड फॉर ऑल द अदर एंड्स इन आवर कॉलोनी। जाहिर सी बात है कि हर चींटी, सारी चींटियाँ कॉलोनी छोड़ के अपने खाने के लिए तो नहीं ना निकल सकती हैं, तो वहाँ भी डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया गया। जस्ट लाइक इन आवर सोसाइटी वी हैव डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वी हैव ग्रॉसरी स्टोर्स। वेन एवर वी वॉन्ट समथिंग दे वी गो टू दैट स्टोर, but the whole family never goes to the store to buy something for a family home. Okay, we always send our elder or one person from home to get the grocery. Okay, so just like us in the ant colony, they also have cook ants. It means the जो भी रेस्ट ऑफ द एंट्स हैं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है खाना लाने के लिए। ये कुक एंट डिपार्टमेंट का काम है कि वो गली कॉलोनी की सारी चींटियों के लिए खाने का मैनेज वही करेंगी, और खाना लाने का काम उनका होगा बाहर से, और वो सबके लिए लाएंगे, ना कि सिर्फ अपने के लिए। जैसे हमारे फैमिली में हमारे पापा जाते हैं पूरे घर के लिए लाते हैं, तो वैसे कुक एंट जाएंगे और बाकी लोगों के लिए खाना लाएंगे। ये काम था कुक एंट का, और इस तरह के बहुत सारे कुक एंट उस कॉलोनी में होते हैं। फूड फॉर द होल कॉलोनी, मरिया से दैट इज़ अ लॉट ऑफ फूड। वो बोलती है खाना, और वो भी पूरी कॉलोनी के लिए, तब तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। टॉप फूड, ये तो बहुत ज़्यादा खाना हो गया उन लोगों के लिए। तो ये बात वो बोलती है बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ लिटिकल, शी ऑल्सो डोंट नो सो मैनी थिंग्स अबाउट द एंट कॉलोनी और द ह्यूमन सोसाइटी। शी जस्ट नो हाउ टू गेट द फूड, हाउ टू राइट स्टडी,
she was her work. Okay,